ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਪ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਗਿਆਨ, ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਇਹ ਤੀਜੀ ਬਾਣੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨੌਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜੁਟਿਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਰਤ ਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਚਲੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਦੀ, ਸਮਾਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ, ਜਪ ਤਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ, ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ। ਜੋ ਮਿਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ। ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ। ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਭਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਤੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨੌਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਧਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣ,
ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਧਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੀਜਾ ਗੁਣ। ਜਿੱਥੇ 3 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਗਿਆਨ, ਅਨੁਭਵ, ਵੈਰਾਗ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਅਗਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे, कोट स्नान गजादक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे, ब्रह्म महेश्वर भिषण सच्ची पत अंत फंसे जम फास परेंगे, जे नर श्रीपत के परस हैं पग, ते नर फेर ना दे तरेंगे। सतगुरु कहते ने मानव इंद्र ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ, ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਜੇਂਦਰ, ਨਰਾਧਪ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜੌਨ त्रिलोक को राज करेंगे। इतनी मल्लां मारियां कि त्रिलोकी दे राजे बन गए। इन्नियां मल्लां मारियां, आकाश पाताल ते मातलोक सारियां दे चक्रवर्ती राजे बन गए। इतना तान उन्होंने अपना इकट्ठा कर लिया। कोट इशनान गजादक दान, करोड़ां ही इशनान उन्होंने कीते। उन्हां तीर्थ इशनाना अस्थानां ते जा जाके गजादक दान, बड़े महंगे महंगे किस्म के जोड़े हाथी ने उन्होंने दान किए। अनेक सुअंबर, अनेकों ने सुअंबर रच रच के बरेंगे अपने ब्याह किए। कितने कितने ब्याह किए, मौजा मारियां। सतगुरु कहते ने ऐसे ऐसे श्रेष्ठ मनुख दुनिया च बड़े होए। महाराज कहने ऐसे ऐसे मनुखों की गल की करिए। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पथ, ब्रह्मा वर्गे, महेश शिव जी वर्गे, विष्णु विष्णु वर्गे, सच्ची पत सच्ची दा पति इंद्र, इंद्र की पत्नी का नाम है सच्ची, सच्ची पथ इंद्र वर्गे ऐसे बड़े बड़े महान देवते। किसी चीज़ की घाट नहीं सी उन्होंने कोल, ना रिद्धियां दी, ना सिद्धियां दी, ना होर ताकतां शक्तियां दी, किसी चीज़ की घाट नहीं सी। सतगुरु कह रहे हैं अंत फसै जम फास परेंगे। मौत के पंजे ने उन्होंने भी नहीं छड्या, वो भी अंत विच मौत के पंजे विच फसे। सतगुरु समझा रहे हैं आम मनुख की की गल करिए। जे महाराज फिर बचेगा कौन, बचेगा किस तरह, मौत के पंजे तो किस तरह बचेगा। या फिर महाराज ये समझाओ भी ये जमन मन का चक्कर खत्म किस तरह होएगा, किस तरह सानू कृपा करके समझाओ। तो सतगुरु अगली पंक्ति दे रहे हैं, ध्यान नाल सुनना। जे नर श्रीपत के परस हैं पग, ते नर फेर ना दे तरेंगे। जेड़े नर मनुख श्रीपत परमात्मा दे परस हैं पग, परमात्मा दे पग परसदे ने, परमात्मा दे चरण परसदे ने, परमात्मा की भगती करते ने, परमात्मा दे चरणां नाल जुड़ते ने। जे नर श्रीपत के परस हैं पग, ते नर फेर ना दे तरेंगे। जो परमात्मा के चरणां नाल जुड़ गए फिर उन्होंने देह नहीं मिलती, उन्होंने जन्म नहीं मिलता, वो जम्मन मरण तो रहत हो जाते हैं। एक ही पंक्ति सतगुरु ने जवाब दिता है।
सतगुरु पातशाह कहते हैं किहड़ियां कामयाबियां दा मान करके घूम रहे हैं असी। हे प्यारे गुरसिखो, किथे ऐसियां कामयाबियां दे भुलेखे विच तां नहीं तुसीं बैठे। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दा सुनेहा है ये बाणी, जे किते इस भुलेखे च बैठे हो निकल जाओ, निकलो इस भुलेखे तो ऊपर उठो, परमात्मा के चरणों नाल जुड़ो, जम्मन मरण तो रहत होना है। ते सतगुरु पातशाह होर क्रियावां समझाते, कहा भयो जो दो लोचन मूंद कह, की हो गया दोने अखां बंद करके बगला समाधि ला के बह गया। कहा भयो की हो गया, बैठ रहे हो बक ध्यान लगाओ, बगले वांग ध्यान मांड के बैठ गया। महाराज कह रहे ने ये बगले समाधि नाल की हो जाएगा, अपना समय ही गवाण वाली गल है और कुछ नहीं होएगा। सतगुरु समझा रहे ने, कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगाओ, नहात फिरो लिए सात समुद्रन, सत्तां समुद्रां दा इशनान यानी कि सारे धार्मिक तीर्थां दा इशनान करदा फिरिया, वड्डा इशनानी बन गया। लोक गयो परलोक गवायो, अपना ए लोक विच जीवन जीण वाला जिहड़ा समा सी ना, महाराज कह रहे वो भी व्यर्थ गवा लिया, ਉਹਦਾ भी फायदा नहीं उठा सकिया। परलोक गवायो तो परमात्मा के हजूरी च निवास करने वास्ते अपना इंतजाम करना सी, महाराज कहने वो भी नहीं कर सकिया। और यह जिंदगी का कीमती समा जिहड़ा आनंद लैण लई मिलिया सी वो भी गवा लिया। लोक गयो परलोक गवायो, दोने किनारे हथों छुट गए। महाराज कह रहे ने ना लोक मिलिया ना परलोक मिलिया। सतगुरु फरमान कर रहे ने, बास कियो बख्यान सो बैठ के। बहुत सारे ऐसे ने जिहड़े केवल विकारां विच ही निवास रखते हैं, विकारी बने हुए हैं, विकारां दे विच ही कलोलां करते रहंदे ने। महाराज कह रहे हैं बैस बास कियो बख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। एवें ही सारी उम्र नूं विकारां विच रोल के ते सतगुरु कहते गवा दी जिंदगी, किसे काम नहीं आई। गुरदेव पातशाह ये समझा रहे ने, किसे काम नहीं आई, जीवन एवें चला गया। सतगुरु पातशाह कहते ने, हे रब दे प्यारिओ, जे तुसी हमेशा जम्मण मरण तो रहत होना चाहते हो, तुसी परमात्मा नूं प्राप्त करना चाहते हो, तां एक गल मेरी बड़े ध्यान नाल सुन लो। की है, साच कहूँ सुन लियो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने परमात्मा नाल और परमात्मा की खलकत नाल प्यार किया है, महाराज कह रहे ने उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति हुई है, दूजे नूं नहीं हुई। जो परमात्मा नूं प्यार करेगा वो परमात्मा की रचना नूं भी प्यार करेगा, खलकत नूं भी प्यार करेगा। और ये रब ने रची है, वो निर्गुण है, ये सरगुण है। महाराज कह रहे हैं जिन प्रेम, जिन खालक और खलकत दोनों नाल जो प्यार करेगा, सतगुरु कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति उन्होंने है। बाकी तो गिनती मिनती दे मालना जितनी मर्जी फेरते रहिए, सिर्फ अपने मन को झूठी तसली देने वाली गल है, होर कुछ नहीं। सतगुरु ने बाणी का निचोड़ है, यह पंक्ति सारी बाणी का निचोड़ विचार है। सतगुरु कहते हैं क्रियावां करन वालियां दी घाट नहीं संसार ते। काहूं ले पाहन पूज धरियो सिर, काहूं ले लिंग गरे लटकायो। की हो गया, पत्थर की पूजा करन लग पिया। पाहन पत्थर नूं कहंदे ने, पत्थर की मूर्ति नूं पूजन लग पिया। ठाकुर नूं जिन्हों सालग्राम कहंदे ने, वो सालग्राम नूं पूज के सिर ते धरदा है, पावों नूं मत्थे टेकदा है। काहूं ले पाहन पूज धरियो सिर, काहूं ले लिंग गरे लटकायो। की हो गया, शिवलिंग नूं गल विच लटका के घूम रहा है, कैरी करी फिरदा है पूजन वास्ते। की हो जाएगा इहदे नाल? सतगुरु कहते काहूं लख्यो हर अवाची दिशा में, काहूं पछा को शीस निवायो। की हो गया भी इन्ना समझ रहा है, हर अवाची दिशा में रब, हर अवाची, अवाची कहते ने दिशा नूं,
चार दिशावां ने सृष्टि दियां, ये चार दिशावां अवाची कहते हैं संस्कृत विच, दक्षिण दिशा नूं कहते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है पूर्व दिशा, लेकिन वो गलत है। दक्षिण विच कहते ने मथुरा है, किसी कृष्ण जी का निवास है। इस तरह करके दर्शनपुरी हरि का वासा, जे दक्षिण विच रब का वासा है तो महाराज कहते अवर मुल्क किस केरा, तो बाकी मुल्क किहदा है? जे दक्षिण विच ही रब है, काहू पछा को शीस नवायो। इस्लाम मत कहता पश्चिम वाल काबा है, काबे विच ही रब लैंदा है, उत्थे ही सिर नवाते हैं। वो जब भी नमाज पढ़ते हैं काबे वाल मुँह करके पढ़ते हैं। काहू पछा को शीस नवायो, एको ही दिशा विच रब है। महाराज कह रहे हैं जे पश्चिम विच ही रब है, अवर मुल्क किस केरा। कबीर साहब कह रहे हैं भी बाकी मुल्क किहदा है? जे रब दक्षिण विच है, रब पश्चिम विच है, तो बाकी दो दिशावां विच कौन है? गुरु साहब कह रहे हैं एवें भुलेखा पाने वाली गल है। काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पछा को शीश नवायो। कुछ नहीं होएगा ऐसा करने नाल। को बुतान को पूजत है पस, को बुतां नूं पूजदा फिरदा है। पस शब्द वरत्या महाराज ने। पस का मतलब होंदा है बेहोश, मदहोश, जिसनों होश नहीं है किसी चीज़ की। पशु नूं किसी चीज़ की होश नहीं होंदी। पशु और मूर्ख एक ही चीज़ है। इत्थे पशु कह दिए या मूर्ख कह दिए एक ही गल है। इसका मतलब है मदहोश, बेहोश। को बुतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन धायो। कोई मृतकां नूं यानी कि कबरां नूं पूजदा फिरदा, दौड़िया फिरदा कबरां नूं पूजन वास्ते। की मिलेगा? कबरां लेटियां धरती दे विच, जिहड़ा आप खड़ा नहीं हो सकता तैनूं की देगा? जो आप खा नहीं सकता, आप पी नहीं सकता, आप कुछ कर नहीं सकता, आप हिल जुल नहीं सकता, तैनूं की देगा? बंदा इतनी गल नहीं, इतनी सोची नहीं बंदे दिमाग में, जो खुद नहीं हिल सकता मैनू की देगा? वो मुर्दा मैनू की दे देगा? तुसीं पंजाब दे एक पिंड तो भाल करनी शुरू करो, तुहाडे कोल कागज पेन खत्म हो जाएगा। इतनियां कबरां ने पंजाब विच, हर खेत दे कोने ते कबर मिलेगी। कारण सच तू तोड़न वास्ते भरमाण वाले ने लोगों का इस्तेमाल किया, गलत रस्ते लोगों को तोरे। गुरु कर सच का प्रचार करता है, सच नाल जोड़ता है। मुक्त होएगा सच नाल जुड़ेगा ता, नहीं तो नहीं। सतगुरु कह रहे ने कूर क्रिया और जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। सारा जगत कूड़ी क्रिया विच उलझिया होया है, लेकिन परमात्मा का भेद कोई पा ही नहीं सकिया। परमात्मा नूं तो समझण का यतन नहीं किसी ने किया, उन्होंने तो समझ ही नहीं सकिया। सतगुरु कह रहे ने जे रब नूं पाना है तो रब नाल प्यार करो, खलकत नाल प्यार करो, रब की रचना नाल प्यार करो। अगर ऐसा करोगे साच कहो सुन लिहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये सारी बाणी का निचोड़ विचार है, एको ही जवाब है। इस बाणी नूं सतगुरु ने संपूर्ण महाराज कह रहे हैं रब दे प्यारे, जे तुसीं भी इस भुलेखे प्राप्तियों के भुलेखे घूम रहे हो ना, तो भुल जाना, कुछ नहीं मिलेगा। अगर गुरमत नूं समझोगे खेड बनेगी। अगली बाणी की विचार अगले समय लैके आप जी के सन्मुख होऊंगा। जिवें सतगुरु कृपा करनगे विचार सांझी करांगे। निक सेवा प्रवान करना जी।